Welcome back to DTF. Welcome back to DTF. Today we have myself, Vikalp, and our special guest Arpit Rawat. नर्वस क्यों हो गया भाई फंबल किए जा रहा है हेलो वेलकम बैक टू DTF episode 7 today we have with us Mr. Arpit Rawat founder of let's Revenant. hear it from him Eminem Revenant. That's his clothing brand. He just started it about 2 हफ्ते. हाँ ब्रो 15th August we started. काम तो काफ़ी टाइम से चल रहा है. It's been like 2 years. Revenue was a thing since 2 years, but finally first drop करा है 15th को. Yeah, that's all. He's wearing his own shirt, his own brand. Looks very sick. Yeah. is that a clear pocket so you can see what's inside or it's just a No, it's a clear pocket. Yeah. It's play of what do you call? सिगरेट्स रखी हैं, ड्रग्स रखा है, जो रखा है हाँ भाई. सब देगा. good metaphor okay so let's have a few questions for him today since okay my bad unfuck yourself हाँ तो what was the inspiration behind Revenum Bhai, Revenue, do they know? Like, we, Mohawk and I are friends, been a while. We were in the same hostel when we were like kids. I mean, he was my senior. We are not from the same class. Same batch. हाँ, same batch. Yeah. How senior? 3 years, 2 years. I graduated in 2020. You're 3 still साल, in school. 3 साल. नहीं हो गया यार, कॉलेज में यार. इतना भी नहीं यार. तो भाई, Revenue was never the plan. ऐसे fashion was never the plan. It was just that कि we used to listen to songs, American hip hop music back in the days, to 2015, 2014. best era है ना, जब वो एकदम स्वेली बूम पे था और ऐसे मैनुकिन चैलेंज और ये सब होता था उस टाइम पे, राइट? भाई मैं this is some inside information. भाई only people who know will know. हमने मैनिक्विन चैलेंज इतना बढ़िया करा था ना भाई. भाई मिल नहीं रहा भाई. भाई कहीं फेसबुक में तो है वो. भाई इट इज समवेयर. किसी के फेसबुक पे है. मैंने एक बार देखा है. मैंने पहली बार डाउनलोड करा था फेसबुक बहुत टाइम के बाद और मैंने देखा था. Dab was a very new thing back then. तो every mannequin challenge had this. the shit dab up भाई हमने इट वाज हमारा बेसमेंट था अराउंड. Like it was a whole playground. इट वाज अ होल प्लेग्राउंड. इट हैड एवरीथिंग ब्रो. उधर हम पूरा बेसमेंट भरा हुआ है. एवरीबडी इन आवर हॉस्टल वाज देयर. इतना क्रेजी मैनिक्विन चैलेंज था ना. आई प्रोबब्ली वन दैट शिट इन इंडिया. वी आर नॉट इवन जोकिंग. That's true. That's true. Back बहुत- then, I think people didn't even know हाँ, कि something like that हाँ, existed. भाई- Mannequin challenge, Swelly का कोई गाना बूम हो रखा है. भाई मैं मुक्का खा रहा था. मेरे को बहुत अच्छा याद है. मैं बॉक्सिंग रिंग में खड़ा हूँ. मैं मुक्का खा रहा हूँ किसी से. बहुत बढ़िया था भाई. Oh. I can't relate Lancers convent for the win मैंने की जाए योगा हुए हाँ तो हम लोग बस रिसेस में प्रेयर्स करते थे और कुछ नहीं. हमारी recess कितनी होती थी भाई? Three recess. Not recess, but like 2 breaks, 1 lunch break. हमारे कैफे से इतनी अच्छी कॉफी की स्मेल आती थी ना. वो बस स्मेल ही होती थी. हाँ हमें भी नहीं मिली कभी. नहीं मिली है हमें, but हमें मना कर देते थे. कहते तुम्हें नहीं देंगे. तुम कॉन्वेंट वाले हो. तुम बाहर से आए हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है. तुम गोरे नहीं हो. हाँ so anyways we were talking about Revenum. हाँ on है. So we were talking about the clothing brand. What is like the like idea behind it? हाँ यार, तो I was telling you कि clothing was never the scene. After I was done with school, मुझे पता था कि I want to do something related to clothing, क्योंकि बस exposure के नाम पे there was just songs, right? Back then I used to listen to Wiz Khalifa, Drake, वगैरह वगैरह, and बस उनको ही देखते थे कि यार उनके कपड़े, what they are wearing, baggy clothes, Soulja Boy made this thing very famous. फिर उसके बाद मैं यूएस जा रहा था एंड कोविड हिट. आई वाज गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को. फिर आई हैड टू स्टे इन इंडिया एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि लुक, आई विल डू व्हाट आई लव. मुझे ऐसे कपड़े से रिलेटेड ही आई वांट टू डू इन फ्यूचर, तो मैं वही करूँगा. तो उसके बाद गलती से मैंने फैशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड
फैशन कॉलेज में भी इसलिए एडमिशन लिया था बिकॉज आई डोंट लाइक थ्योरी, आई वॉन्टेड टू लर्न प्रैक्टिकल स्टफ. बट फिर उसके बाद वहाँ तो दोनों ही सब कुछ मिक्स हो गया. एंड 4 years फैशन कॉलेज, pretty hectic. Then I realized कि I want to do Revenim and I don't want to do t-shirts because I think a lot of my friends, a lot of brands already existing are doing t-shirts. So that's why I came up with Revenim. कि I want to do something which is not knitwear. Okay, that's cool. हाँ वैसे कुछ अच्छा देखो हमारे स्कूल से ही आई थिंक 2 ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं अपना. shirts are all the hype now. Like हाँ every other डाउन person is स्प्रे. talking about- See, t-shirt is not a bad thing, no. It's Yeah. easy to wear. Yeah, exactly. It's like fast fashion. But okay, so Revenim, like where did that name come from? Like is there a story behind it or like There is a little story. बहुत पहले Mohawk knows. I had a brand in school. school? Back in 2017. 2017 Waves के 2017, नाम right? से. Waves. So bro, I think you didn't know, but Waves existed before that. अच्छा So shout out to George. अच्छा. We were just sitting in library और हम गाने सुन रहे थे लाइब्रेरी में बैठ के. और वहाँ से हमें आया कि ब्रो इंडिया में कुछ सीन नहीं था उस टाइम. 2016 आई एम टॉकिंग अबाउट. इंडिया में कुछ सीन नहीं था और जो सीन भी था दैट वाज अर्बन मंकी, जिसकी बस ओनली कैप्स वर देयर एंड देयर वाज अ ब्रांड कल्चर कल्टिवेशन. तो इन सब का बहुत कम सीन था. एंड रणवीर सिंह वाज बूमिंग एट दैट टाइम. रणवीर सिंह वाज डूइंग कल्चर कल्टिवेशन. तो मी एंड जॉर्ज डिसाइडेड दैट वी वांट टू ओपन अ ब्रांड. सो वी स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग. हमारा नाम था ब्लैक ब्रांड का. तो फिर वो ऐसे कैच नहीं हो रहा था कि भाई ब्लैक में ऐसे तुम कुछ भी टी शर्टें बना के बेच रहे हो. तो उसके बाद आई वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू वाइब्स कि स्ट्रीट वेयर इज़ अ वाइब. तो वाइब का सिनोनिम वेव्स बना. देन आई केम आउट विद द नेम वेव्स, RORM, राइड और मेक. तो उसके बाद जॉर्ज लेफ्ट द स्कूल. देन दिस अदर फ्रेंड ऑफ आर्स, क्रोमोजोन, ऋषिक और मैंने वी स्टार्टेड दिस ब्रांड. वी केम आउट विद 2 drops. One was just waves written and the other one was stripes on t-shirts. That was new, so we just back then we you were didn't just knew experimenting? back then we didn't knew anything. और हम बस ऐसे करोल बाग जाते थे, वहाँ से टी शर्ट्स आके लाते थे, एक लोकल बंदे से प्रिंट कराते थे और हम इंस्टाग्राम के थ्रू बेचते थे. और हमने बेचे भी ऑर्डर्स कैसे हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड ही यूज्ड टू लिव इन फरीदाबाद. तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि भाई फरीदाबाद से एक ऑर्डर आए तो कैन यू व्हाइल यू गो होम कैन यू ड्रॉप इट. तो बैक देन वी डिडंट नो GST क्या होता है, ये क्या होता है, वी डिडंट नो एनीथिंग. तो बस हम उसके रिलेटेड ही ऐसे काम करते थे कि अच्छा तू नोएडा जा रहा है, नोएडा में ड्रॉप कर दियो. अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वेव्स. देन वेव्स बंद करना पड़ा बिकॉज वी थॉट कि नहीं हो पाएगा. मैंने आई वॉज डन विद स्कूल, कोविड हिट हो गया था. देन अब रेवेनम आया. Pinterest का एक नेम है रिवीरी. रिवीरी मीन्स डे ड्रीमिंग. तो आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ व्हेन आई यूज्ड टू सिट इन माय क्लास, कोई भी मतलब स्कूल में भी कॉलेज में भी टीचर कुछ समझा रहे हैं तो मैं जोन आउट हो जाता था और मैं कुछ सोचता रहता था कि भाई व्हाट इफ आई डोंट डू दिस एंड डू दैट. फिर उसके बाद वो नाम काफ़ी क्लिक हुआ कि आई थिंक आई रिलेट टू दिस नेम. तो लीगली व्हेन आई टॉक अबाउट इट आई डिडंट उसमें मुझे ट्रेडमार्क नहीं मिला रिवीरी का. देयर इज ऑलरेडी आई थिंक देयर इज you अ applied for it? यस देयर इज अ कंपनी इन लुधियाना, सम प्रोडक्शन हाउस में भी. उसके पास रिवीरी का ट्रेडमार्क था. तो फिर ऐसे माइंड फक हो गया कि भाई रिवीरी इज समथिंग आई थॉट एंड इट वाज सच अ नाइस नेम. फिर उसके बाद मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स वी यूज्ड टू ड्राइव टू कॉलेज, यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम कॉलेज. तो हम क्या करते थे, मैं अपने दोस्त को डायरी देता था, एक क्या बोलते हैं उसको, जर्नल देता था. एंड वी जस्ट मैं उसको रैंडम नेम्स बोलता रहता था, वो भी रैंडम नेम्स बोलता रहता था और हम लिखते रहते थे. Brainstorming. तो बिफोर रेवेनम माई नेम वॉज, कंपनी का नेम वॉज फिशरमैन, FSHRMEN. तो दैट बेसिकली मीन्स फ्रॉम आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ लिरिक्स कि देयर इज अ लॉट ऑफ फिशेस इन सी एंड वी आर द फिशरमैन. तो ऐसे करके फिशरमैन बना. फिर फिशरमैन भी हमें लगा कि यार इट्स नॉट रिलेटेबल, कि मतलब ऐसे इट्स वेरी, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है अभी तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट मैं बहुत वेगली एक्सप्लेन करूँ तो भाई देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेस इन द सी एंड माई लाइफ डजंट रिवॉल्व अराउंड यू नो गर्ल्स. तो आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ लाइक दैट. तो उसके बाद रिवीरी का जो हमने हाफ करा तो उसका मीन्स है डे और ड्रीमिंग. तो मैंने वहाँ से रेवे उठाया
और मैंने रेवे मेन बनाया, रेवे मैन। ठीक है, रेवे मेन। तो रेवे मेन एक ब्रांड है इंडिया, यहीं दिल्ली से है कि कहाँ से है, ईवमेन। तो हाँ, काफ़ी Evemen। काफ़ी रिलेट हो रहा था, मतलब काफ़ी सेम साउंड कर रहा था। तो मैंने मेन का उल्टा करा नेम, दैट्स व्हाई इफ यू सी माय लोगो द ई इज उल्टा, That's smart. सो दैट्स रेवे नेम। That's a really good story. Like, nice. मैं भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था आइडियाज पे अपने खुद के ब्रांड के लिए, इतने टट्टी आइडियाज आए ना, लेकिन अब स्टोरी बिहाइंड इट। मेरा तो भाई, ओ भाई थंडरस्ट्रक कितना बढ़िया नाम होगा भाई, क्या भाई मतलब फैक्ट, व्हाट द फक इज दैट, ब्लू भाई बट यू नो मैंने भी बहुत उल्टे सीधे नाम सोचे हुए हैं। I mean, like, it's part of the process. Like, It's part of the process, but भाई you give any random ass name, you go to the lawyer और बोले यार ये रजिस्टर करवाना है, करवा दो। भाई वो random ass name भी ना रजिस्टर्ड होगा। exactly उनका तो काम। अच्छा, it Random will ass name, already be yes, registered. it will be already owned by someone, that brand name. या आई थिंक पीपल का काम है, लाइक हाँ, हाँ, आई थिंक दैट इज व्हाट दे डू। अरे भाई मैं वेबसाइट अपनी बना रहा था, तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि आई वांट टू गेट माय वेबसाइट मेड, ये वो। तो मैंने तब डोमेन नहीं लिया था, तो मुझे सब डांट रहे थे कि ब्रो बाय योर डोमेन राइट नाउ, अदरवाइज दे विल बाय योर डोमेन एंड दे विल सेल इट फॉर इवन नेक्स्ट टाइम्स। हाँ, तो मतलब ऐसे ऐसे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं। सही है। हराम का तो कोई भी खाएगा भाई, बनिया हो तो I know a thing or two about that. But dude, like, but I think like it's like gambling. Like, once you don't fail, you'll never reach the gold mine. So like, don't quit gambling and coming up with ideas. Good. Coming up, that's not the takeaway from good this. advice. That's not the takeaway from this. It's like, गलतियां करो तभी सीखने को मिले। चले गोवा। चलते भाई, सब जा रहे गोवा, सस्ता हो रखा है think अभी। भाई तेरे साथ में 4 प्लान बना लिए भाई, इसके साथ मैंने 12th ग्रेड से 4 बार प्लान कर चुके हैं भाई। सिर्फ तू और मैं, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। ए यो, गोवा थोड़ी जाएंगे, मालदीव जाएंगे भाई। प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा सही बात है, भैया भाभी की तरह। अरे भाई लक्षद्वीप जा भाई। ओके, हाँ या हॉस्टल के बारे में आते हैं। शेड भाई, देखो लांसर्स मेरे को हाँ चलो लैंसर। कॉन्वेंट इंटरनेशनल का फर्क है बस। भाई ये हमारे भाई स्कूल- अगर ये वीडियो मेरे घर वालों ने देखी, दे डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड। अरे तो ये बता रहा था मेरे को अभी रिसेंटली कि मतलब जब भी हमारे स्कूल आता था ये, तो LIS बात कर रहे थे हम जब तू गया हुआ था। हाँ ये आता था तो फिर ये बोलता था कि भाई बढ़िया भाई। ये तो पेरिस है, ये कहाँ आ गया? मुझे भी ऐसे ही लगा था पहले एक हफ्ते। बट लाइक एक मैं मजाक भी नहीं डिड कर यू लाइक आवर कैफेटेरिया? आई मीन द मफिन्स वर गुड। मैं मफिन खाने जाता था। नो, डिड यू लाइक द होल वाइब? आई डोंट लाइक रिमेम्बर मोस्ट ऑफ इट, बट लाइक यहाँ हाउ कैन यू नॉट रिमेम्बर लांसर्स का कैफेटेरिया? नहीं, मेरे को अपने का याद है ना बहुत अच्छे से, क्योंकि वो हमें तो समीर हमारा का बैठाते थे। यूएसपी है, हमारा बेसमेंट। बेसमेंट तो भाई क्या बढ़िया चीज़ थी, हर चीज़, स्केटिंग, बास्केटबॉल, पूरा ऐसे फैला हुआ, क्योंकि हमारे सारे इवेंट्स वहीं होते थे। अब असलियत बताते हैं हमारे असलियत Like, में। भाई नहीं, कमिंग फ्रॉम जहाँ से मैं आया, मेरे को नहीं थी आदत वो चीज़ें देखने की, और वहाँ पे लाइक यू सी डाइवर्सिटी, कोई ब्लैक, कोई फिलिपिनो, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से। भाई ये वाली स्टोरी ना मेरे से बाद में पूछना कि कमिंग फ्रॉम, आई विल टेल यू दैट स्टोरी भाई, दैट इज ऑसम। भाई मेरे को ना इन्होंने स्कूल दिखाया, मैं बोलूं भाई ये क्या है भाई, ये जगह है ये। पता है प्रॉब्लम क्या है हमारे स्कूल की? हमारा जो रिसेप्शन है ना, हाँ। इट हैज दैट बहुत सुंदर है यार। नाइस फ्रेग्रेंस। हाँ। ग्रीन एमरल्ड मार्बल एवरीवेयर। या उसमें ना भाई बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है कुछ, ठीक है। और वो व्हेन यू विजिट द स्कूल दैट स्मेल स्टेज विद यू, बट वंस यू गेट इन द स्कूल दैट वेयर इज दैट फ्रेग्रेंस यू डोंट नो। फेरोमोन्स होते स्टार्टिंग के, बस अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आओ तुम, अब बताएंगे, अब तो ले लिया एडमिशन। एंड ब्रो बैक इन लाइक 2016 15 भाई, दैट वाज और पैराडाइज भाई। और जो दिखा रहे होते हैं ना वो पैर चाटने को रेडी होते हैं भाई। या लवलीना मैम शाउट आउट, पैर चाटने पे रेडी थी भाई वो, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ ब्रो, डू यू नो आई एम नॉट अलाउड इन स्कूल। भाई। हाँ लेट्स टॉक अबाउट दैट बिफोर वी गो टू द। पर तू फिर ऐसे बोल देगा कि नहीं तू तो बुली था भाई। अरे नहीं नहीं यार, मतलब चलो ठीक है, मैंने थोड़ा अपने टाइम में आपकी
अपने टाइम में आते आते मैंने भी करा है ये। अब इट इज अ थिंग लाइक वंस यू डू बट यू नो लाइक अस बीइंग इन हॉस्टल भाई बहुत बोरिंग होता था कि वी जस्ट भाई लड़कों के साथ क्या भाई पेच थोड़ी लड़ाते रहेंगे पूरे टाइम। दैट्स ट्रू मैंने नहीं लगाया वैसे। हम तो वो खेलते थे ना स्प्रे जज स्प्रे। हाँ अरे भाई वो भाई होली खेलते थे हर दूसरे दिन, होली चल रही है वॉशरूम में। ओह शिट। हाँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम हाँ आवर हॉस्टल लाइफ। भाई देखो शुरू में लाइक हमारे हॉस्टल के जो डॉम पेरेंट्स थे ना, शुरू में कौन से हमारे जब मैं आया था आपको याद है कौन से थे उस वक्त? हाँ प्रोमिला मैम थी और एक और कौन था? oh that gay guy Promila and that gay guy bro if I'm not wrong। जॉन सर थे, ये एक और जॉन सर थे ना? नहीं हाँ yes with he used to live with his wife। या yes he was chill dude भाई, he was very chill। he was chill then we had this panwadi guy, याद है? अभोय bro so मुझे somehow 2 years ago हाँ मैं कुछ अपना फोन I changed my phone, तो मैं सबके ऐसे कॉन्टैक्ट्स देख रहा था कि कौन कौन है, और उसमें ऐसे अभय पनवाड़ी के नाम से कॉन्टैक्ट सेव था। मैं डॉक्टर का नाम पनवाड़ी रखा हुआ ब्रो। उसका वो सुबह उठता था ना ब्रो, लाइक उसके ना यहाँ पे पूरा वाइट लगा हुआ था। मैं मजाक भी नहीं, भाई पता नहीं क्या किसी को चुपा दे गया है। शिट भाई हाँ चुपा दे गया है वो, तो किसी को तुझे क्यों है सब याद? भाई हॉस्टल की मेमोरीज ढंग से याद है भाई सब। भाई हमें ही उठाने आता था वो। हाँ ये जूनियर थे ना, तो ऐसे Junior स्टार्ट फ्रॉम जूनियर सीनियर तो नहाते नहीं थे भाई ये लोग नहाते नहीं थे भाई, रात को नहा के सोते थे। मैं नहाता था रात को नहा के सोते थे ये लोग, क्योंकि बास्केटबॉल खेलते थे ये लोग, एंड रात को नहा के सो जाते थे। Oh no so it was like हम रात को नहा के सोते थे। we had our practice early in the morning, हाँ। उसके बाद हमने लेटर साइन कराया हुआ था कि वील स्किप फर्स्ट लेसन। हम पहला लेसन आराम से नहाते थे, मैगी खाते थे, वर्कआउट करने के बाद फिर हम स्कूल जाते थे। भाई इनकी बहुत बढ़िया था, इनके टाइम पे जितने टाइम में आया ना मैंने स्कूल छोड़ दिया। But I think that's good भाई, when we left you left। I think that's a good thing to that's do। a good thing to be honest, because the thing is कि मतलब कोई था नहीं, मतलब हमारे जैसे सीनियर्स की जिंदगी बन रखी थी ना, हमारे जूनियर्स इतने ठीक नहीं थे। लाइक जैसे मैं इवेंचुअली ठीक हो गया, हमारे मेरे आसपास के लोग पहले ठीक थे। When you were in Lancers you used to live at your old place right? हाँ रोहिणी रहता था ना, तो भाई वहां से आने के बाद ना, जैसे मैं where I live where you live, हमने कभी वो क्राउड नहीं देखा है ना। मुझे तो पता भी नहीं था भाई माइनक्राफ्ट क्या होता है। मैं तो 6th ग्रेड में आया था, मुझे नहीं पता था। मुझे बस वो पता था एक बाइक वाला गेम होता था जिसमें कुछ प्रेस करो तो लात मारता है। हाँ रोड रैश वो खेला हुआ था, और पैकमैन खेला हुआ था, और GTA वाई सिटी खेला हुआ था, मारियो वगैरह खेल रखी थी, यही बस था हमारा। बेसिक। तो वहां पर भाई ऐसे बड़े सोफिस्टिकेटेड से लोग, मैं पहले दिन जब गया जैसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। एक हफ्ते मेरे साथ ऐसी रहा, ठीक है। एंड ब्रो मी वेयर आई कम फ्रॉम, आई वाज इन अ पब्लिक स्कूल, ठीक है। सो इट वाज अ बैड स्कूल। मतलब ऐसा सीन था कि हमें ऐसे बस वही पता है मेरे को, लैंसेस कॉन्वेंट भी ऐसे ही था। उससे भी बेकार, मतलब उससे भी बहुत बेकार स्कूल था मेरा पहले। नहीं हो सकता मान ही नहीं सकता मैं। Say what you want, Lancers Convent, like out of all Delhi schools, I like it's better, it's not good, it's not very देख मैं प्रूडेंस वगैरह की बात करूँ ना इधर, तो मतलब चल उनका फीस थोड़ा ज्यादा है। इट्स स्टिल अ पब्लिक स्कूल, मतलब प्राइवेट है शायद वो। हाँ प्रेसिडियम होगा ना प्राइवेट। बट लाइक यू नो स्टिल लाइक दिल्ली का क्राउड ओनली राइट। हमारे में मतलब थे, मतलब कुछ थे भाई, प्राणी थे भाई मेरे हमारे। किसी की वीड क्लास में उछाली जा रही है, किसी की कुछ कहाँ पर कॉन्वेंट में। बट एडमिटेड जितना फन तेरे को 12th में आया तेरे को नहीं आया होगा LIS में। लाइक माइनस जब दो लोग थे साथ में। पता है डिफरेंस क्या है? मेरे को भी सब यही पूछते हैं कि जितना फन तुझे कॉलेज में आएगा तो स्कूल में नहीं आएगा। बट भाई बहुत क्राउड उल्टा है भाई, उल्टा है। इट वाज कि वहां पर जो टाइप का फन हमने करा है ना, वो हम कभी भी कॉन्वेंट में या मेरे कॉलेज में या पर्ल में नहीं कर पाओगे भाई, ऐसे बकचोद है ही नहीं कर पाओगे। एंड वंस यू गो देयर नो, सो जैसे मैंने बताया कि मुझे ये हो रहा था कि मुझे कैलिफोर्निया जाना था बट मैं नहीं जा पाया, तो मेरी एक टेंशन यही थी कि भाई दिल्ली का क्राउड हाउ विल आई हैंडल इट। मेरे साथ सेम था। मैं अभी भी अपना इधर रहता हूँ ना, इधर अपनी सोसाइटी के अंदर से लोगों से इतनी कम बात करता हूँ ना मैं। मेरे स्कूल के मेरे कॉलेज के तो चलो थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव क्राउड ही है, लाइक जितना पॉश LIS का था उतना आई कैन स्टिल रिलेट एंड अंडरस्टैंड एंड स्टिल गेट ऑन विद पीपल। इफ आई वर स्टिल इन व्हाट इज इट कॉल्ड, मतलब अब थोड़ा अपना DU वगैरह चला जाता मैं, मेरी गांड फट जाती भाई।
I Too vanilla for DU. DU, Amity, even Amity for that fact. But Amity is like खचरे लोग but महंगे खचरे लोग. Amity is like भाई अपने से मतलब रखो. हाँ, DU अगर is- वहाँ किसी और से मतलब रख लिया ना, then I think you're fucked. DU is खचरे, Amity is थोड़े अमीर खचरे, and Pearl and LIS is अमीर. So वो Venn diagram में बीच में आता Bro, the thing is, खचरे लांसर्स वाले भी हैं हाँ इंटरनेशनल हाँ वाले. अपने थे But यार. तुम्हें देख के पता नहीं चलेगा. हाँ अनलेस दे ओपन. यार अपना है कौन था अपने एग्जांपल दो कोई. भाई भाई पर्सनली स्पीकिंग लव यू. नहीं नहीं भाई लोग अच्छे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, लोग अच्छे हैं, बट उनको स्किप भाई स्किप. है. अच्छे लोग हैं, गुड अच्छा पीपल. गुड पीपल. नो वंस कचरा. भाई तो बढ़िया सीन था भाई. हॉस्टल तो भाई आई रियली भाई इफ आई एवर हैव अ चांस टू लिव लाइक दैट शिट अगेन आई वुड ओह हेल या भाई, हेल या. एनी टाइम. लाइक मैं सोचता था मेरा भाई क्या ही है. आज भी अगर मैं उससे पूछता ना तेरे को स्कूल में वापस जाना है एंड शिट. मेरा भाई 8 साल बड़ा है मेरे से. आई आस्क हिम ही इज लाइक नहीं भाई अपनी लाइफ में ही इज हैप्पी. हाँ हाँ शिवाजी में थे भैया. द थिंग इज वो मैंने पूछूंगा ना स्कूल में कभी जाना है वापस मतलब ही थिंक अबाउट इट. मेरा है भाई ले चलो भाई. Same. The age difference, like when you reach that age, you'll be like कि नहीं. No, bro, that's the school. I'm स्कूल telling पे you, that's the डिपेंड school. करता है भाई. लाइफ पे डिपेंड That's not even about school. That's about hostel life. हाँ क्योंकि even in my college, no, a lot of people they were in मसूरी के hostels. तो उनसे भी मेरी बहुत ऐसे कॉमन बात यही होती थी कि भाई रात को क्या करते थे, मैगी बनाते थे. मैगी बना के खाते थे. भाई आज भी मेरे कोई दोस्त होते हैं वो गए हुए अभी कॉलेज में हॉस्टल गए हुए लोग. सेम सीन. मोहक भाई तू मैगी कैसे बनाता था भाई. Bro, अरे भाई you know what a kettle is, right? The मैगी बनाने वाला मतलब जिसमें होटल्स में हम वो हाँ, कॉफी exactly. और चाय बनाते हैं. Electric kettles. पैकेट मैगी डाल. भाई कितनी पैकेट डाल सकते हो. एग्जैक्टली दैट्स नॉट पॉसिबल. भाई करते थे भाई. और कंपटीशन हो रही है, measures. कंपटीशन हो रही है कि मेरी केटल बेटर है तेरे से. और भाई ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें लाते थे यार अरे चलो लोग. तो जैसे मैं जूनियर था ना जब तो मैं बताऊं क्या करता था कि मतलब ये लोग बोलते थे कि मैगी खिलाएंगे. पहले इसको साफ करके आ इसे बना और फिर खा लियो. फिर साफ खा लियो फिर धो दियो. फिर मिल जाएगी खाने को. एंड वंस आई ग्रू अप आई हैड द मनी टू बाय माई सेल्फ मैगी एंड माई ओन केटल. भाई मैं जूनियर से सेम चीज करा रहा हूँ. नहीं फिर तब तक जब उसने केटल ली तब तक हमारी खराब हो गई थी. इसकी ले ली. तब हम कहते थे कि भाई तेरी केटल है, तू साफ कर बना मैगी. सो सही भाई था वी आई सर्वाइव्ड कितने 6 years स्कूल लाइफ. आई सर्वाइव्ड आइस टी एंड मैगी. आई थिंक तेरा भी सेम ही सीन होगा. है भाई. भाई हम 5 लड़के, ठीक है, मेरे ग्रुप के 5 से 6 लड़के, हमको मिलते थे 700 रुपए पर सैटरडे. हाँ 700 रुपए. ठीक है, और उससे ज्यादा लेने तो मेल डलवानी पड़ती थी पेरेंट्स से. तो हम ऐसे 700 रुपए कलेक्ट कर करके सो 250 गोज फॉर मैगी. Per person, per person. पर पर्सन. 250 रुपीस और मैगी सिर्फ मैगी लेते थे. ठीक है, 250 फॉर आइस टी के 2 पैकेट आ जाते थे 250 में. एंड कितना बचा? 200 रुपए बच गए 200 पर रुपए पर्सन. बचा. उसको हम खाते ही ऐसी जगह थे सस्ती सी कि वो टोटल बिल हमारा ऐसे आता था कि हमारा बच जाता था उसमें से भी. एक सेकंड, like hostel में like where did you guys eat? खाते कैंटीन या Saturdays को we were allowed to order. Sundays को they used to take us. There was a mall behind our school. साउथ पॉइंट मॉल South था. Point Mall. And कभी कभार एम्बियंस जब ऐसे बस अवेलेबल है. नहीं तो साउथ पॉइंट मॉल तो चलो पैदल चलो. तो मॉल में ले जाके like you guys had your own money. We had to wear our savings जो भी थी. this PE physical education uniform. और वहाँ पर जाके हम ऐसे घूमते घूमते बस थे. घूम रहे हैं आके. हाँ मतलब अगर पैसा नहीं भी है ना किसी बच्चे के पास, वो बस घूमेगा. क्या भाई क्या करेगा भाई. घर पे एक जगह पे ना वो कैद सा हो जाते हैं भाई, जेल सा. ऐसा अरे लगा चल, नहीं कभी. अब चलो बढ़िया बात करते हैं. मैं बताता हूँ आपको. मैंने तो करा नहीं, मैंने बस सुनी है बातें. मैं तो छोटा था, मेरे को बताते भी नहीं थे. भाई आप लोग स्कूल पार करके गए हुए हो. ओ मैं यही तो बोल रहा था तुझे. तो भाई ये क्या लोग होता था? स्कूल टाप के गए हुए भाई. तो हम 10th 11th में पहुंच गए थे. तो तब पेरेंट्स को भी पता था कि भाई अब 700 रुपए से तो काम चलेगा नहीं. तो हम घर से भी 1000-2000 रुपए मांग के लाते थे. तो वीक के बीच में क्या होता था, रात को चिप्स खत्म. ठीक है, तो हमारे स्कूल में 3 गेट थे. लाइक दिस इज द बैक साइड, दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द साइड गेट. ठीक है, तो हम साइड गेट में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था, छोटा सा गेट था. तो हम वहाँ से टाप के, देयर वाज सोसाइटी यहाँ पर, उसके स्टोर पे जाते थे. हम वहाँ से चिप्स विप्स लाते थे, गेट से स्नीक इन करते थे, फिर टाप के वापस आते थे अंदर. और हमने वहाँ पर एक गार्ड को सेट करा हुआ था. गार्ड आंटी थी,
हमने उनको सेट करा था, हम आपके लिए भी लेंगे कुछ, ये हमारा सामान छुपा लेना। सामान छुपा के रखती थी वो, हम ऐसी रात को घूमते घूमते आते थे। कभी डॉम पेरेंट भी टकरा गया तो हम बोलते थे सर सामान चोरी हो जाता है, हम दीदी के पास रखवाते हैं, वहाँ से सामान लेके ऊपर। तो एंड हम इतने यूज टू हो गए उस चीज़ से कि वन गाय यूज टू स्टैंड नियर द बास्केटबॉल कोर्ट, वन गाय यूज टू स्टैंड नियर द हॉस्टल गेट, 2 बंदे जाके टाप के ला रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर ऐसे भाई बढ़िया भाई। पूरा भाई हाइस्ट चल रही थी भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। एक उसको पकड़ाता है, फिर वो आगे जाता है। ये सब मैंने नहीं देखा होते हुए वैसे, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा था। हाँ। तो हाँ मैं पता है फैक्ट क्या है, मैं आज तक स्कूल के टाप के नहीं गया बाहर आज तक। अच्छा ऑब्वियस मैं वो थोड़ा गार्ड वाला काम करता था कि भाई कोई आ तो नहीं रहा, ये वो कौन जाता था भाई? पतले पतले लोग हैं। कहीं पकड़ा? मैं पकड़ा नहीं गया। मैं बता दूं पकड़ा कौन गया था। तू देख भी पकड़ा गया हो, कोई फंसी स्टोरी? अरे मैं बता दूं पकड़ा कैसे गया। तो बेसिकली हुआ क्या था एक टाइम कि हम ना दिशा दीदी को बोलते थे कि हमारे लिए डोमिनोज वगैरह मंगा दे। ठीक है, हमारी गार्ड थी, एक ही अच्छी गार्ड थी। बाय द टाइम आई रीच्ड लाइक आई थिंक 8th ग्रेड। शाउट आउट भाई, शाउट आउट दिशा दीदी भाई, वो हमारे लिए मंगा देती थी खाना। एक बार क्या हुआ, हमने रात को मंगा रखा, हम खा रहे डोमिनोज और जॉन सर आ गए। सर पूछते ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आया? सर बासी खा रहे हैं सर, एक हफ्ता पुराना। सर एक हफ्ता पुराना है सर, कोई नहीं सर। भाई जो पहले तो आया कैसे अंदर, तो पहले मतलब हमारा खाना तो ले लिया, हम खा भी नहीं पा रहे, हमने पैसे भी दे रखे हैं। गार्ड और हमारी गार्ड की और लग गई भी मतलब में, और गार्ड को हटा दिया। फिर ये हुआ था यार। वो तो भाई उन्होंने तो बहुत से हटा दिया, गेट से हटा दिया। हाँ, so she was relocated. Yeah. भाई, And the thing is, I'll tell you something funny. उनका ऑर्डर मेरे मेल से कनेक्टेड है आज भी। तो अभी वो कभी भी ऑर्डर करते हैं मेरे मेल पे आता है कि यो बट भाई जब तक वो थी ना, इट वाज अ ब्लेसिंग भाई, इट वाज अ ब्लेसिंग। यू कैन गो आउट एट नाइट, मतलब ऐसे हॉस्टल से 10 बजे के बाद यू कांट गो आउट। अच्छा हाँ, तो फिर But so if you have to get something from the girls hostel, तो you can go बाहर से, या फिर अंदर से वो दरवाज़ा खोल देती थी, नीचे was a corridor, वहाँ से she used to unlock the door, वहाँ से जाके अपना सामान ले आओ, जिस भी आपको फ्रेंड से लाना है वापस चले जाओ। उसके नहीं तो अलाउ नहीं था। और भी बहुत हेल्प करी है तो उसने। लड़कियां स्नीक वगैरह नहीं करती थी बॉयज हॉस्टल? तुम लोग नहीं जाते थे? भाई आई थिंक ही वाज a bit too young for that. या ही वाज इन मिडिल ईयर। 6th 7th ग्रेड में था। मैंने तो ये सब तो नहीं करा, ये भैया बताइए। मेरे टाइम पे नहीं हुआ था स्नीक इन वाला सीन, बट मैं 12th में ही था उस टाइम। 12th स्टार्टिंग में, 10th स्टार्टिंग में मैं हॉस्टल छोड़ देता था बोर्ड्स के टाइम पे। मुझे पता था पढ़ाई तो होनी नहीं है, तो मैं हॉस्टल छोड़ देता था। तो फिर मुझे कॉल करके पता चलता था कि भाई तो हमारा हॉस्टल कैसा था कि इफ दिस इज द बिल्डिंग, इतना साइड इज गर्ल्स हॉस्टल, इतना साइड इज बॉयज हॉस्टल, और बीच में ना हर फ्लोर में एक डोर कनेक्टेड था विच वॉज लॉक्ड, परमानेंटली लॉक्ड। तो भाई एक लड़का था कपिश उसके पास समहाउ सारे औजार पड़े होते थे, औजार एज इन ऑल द इक्विपमेंट्स टू डू व्हाटएवर द हेल। मतलब तुम्हें कुछ भी खुलवाना है ना तुम्हें कुछ भी खुलवाना है भाई, वो पता नहीं कहाँ से क्या अजीब सा प्लास स्क्रू ड्राइवर ले आएगा, ठीक है, और वो खोलता था। फिर उसने ऐसे अपने इक्विपमेंट्स ऑफर करे, फिर ऐसे स्नीक इन स्नीक आउट होना शुरू हो गया। फिर एक और लड़का, एक कार्तिक लड़का था कार्तिक लड़के को हम सोफे में बिठा के रखते थे कि भाई तू बाहर बैठ, तू हमारी मैगी ले तू हमारी मैगी ले। उसको एक ही शौक था, मैगी। मैगी खिला दो बस। भाई वो सो मेंटली गॉन भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई। यू कांट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दैट गाय। इट्स हिज लैपटॉप, ही इज इन लव विद हिज लैपटॉप, लॉन्ग एज नेल्स, आई डोंट थिंक ही एवर शावर्स, मैगी, लैपटॉप, आइस टी कभी कभार पैसा होता था जब। हाँ भाई, बट दैट मैन वाज मेल्टिंग इनसाइड हिज बेड। आई एम नॉट हाँ दैट्स ट्रू भाई। मतलब यू गो टू हिम, यू विल सी हिम लाइक ऐसे लैपटॉप के ऊपर मैगी हाथ में पकड़ी हुई है और कुछ देख रहा है या कुछ खेल रहा है, बस। You can smell the depression. लीग ऑफ लेजेंड्स खेल रहा भाई। है ये खेलता था वो? Understandable. It makes sense. Oh, I don't know. It makes sense now. And bro, he was senior to me, and he was living on the junior floor for a very long time. I don't know. और मैं शिफ्ट हो गया था 8th में। I was supposed to shift in 10th grade. मैं 8th grade में शिफ्ट हो गया था। फिर हमारा डॉम पेरेंट चेंज हो गया था, जॉन आशीष इमैनुअल। तो वो आके मुझे डांट रहा है कि यू कांट शिफ्ट, ये वो। मैंने कहा सर यू आर न्यू और आई एम न्यू, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मैं पहले से यहाँ पे। हाँ भाई, मैं पहले से 2 साल हो गए मुझे। My territory. Damn.
और ऐसे बिल्ड भी स्टार्टिंग से ऐसी था ना, आई थिंक 8th 9th में जब तू आया था मेरी बेड थी ऑलरेडी, है ना, तो भाई मैं थोड़ा जेलिन भी हो जाता था सीनियर्स के साथ, तो मैं 8th ग्रेड में 12वीं के लड़कों के साथ सोता था, मतलब डिफरेंट बेड्स। You heard it here first, man. Remnam के ओनर लड़कों के साथ सोते थे back in डिफरेंट बेड्स, हॉस्टल। That's not looking so good, but ठीक है. हाँ, तो ये सीन था। Just a hint of pedophilia is all we need. तो हाँ, फिर स्नीक इन होती थी। एक बार क्या हुआ कि सर आ रहे थे ऊपर 3rd फ्लोर में, स्नीक इन वहीं से होता था, स्नीक इन स्नीक आउट। तो वी सेंट ऑल द गर्ल्स बैक टू द गर्ल्स हॉस्टल, नॉट मी, आई वाज नॉट इन हॉस्टल। तो क्या हुआ, एक लड़का था, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, तो वो एक्ट कर रहा कि ही इज स्लीपिंग, ठीक है, ही इज स्लीपिंग। और उसमें अब 2 दिक्कत क्या थी कि हमारे पास फोन नहीं होना चाहिए, और रात के बज रहे थे 2, ठीक है। तो सर आए, कहते आर यू स्लीपिंग, उससे पूछ रहे, और ऐसे ब्लैंकेट हटाया, ठीक है, ब्लैंकेट हटाया, उसका फोन साइड में पड़ा हुआ, कहते व्हाई इज योर फोन साइड में, ये वो। उसके बाद तो जैसे ही एक्ट करा कि व्हाट हैपेंड, उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया उस फोन पे, जो 2 मिनट पहले उस साइड गई है। तो ये दोनों सब के पास फोन नहीं होने चाहिए थे. ऑब्वियसली हॉस्टल है, बट हमारे हॉस्टल में थोड़ा चिल सीन था फोन के लिए, बट वो तभी भी इफ ही सीज अस एट नाइट अराउंड 12-1 यूजिंग आवर फोन, तो वो ही यूज्ड टू गेट पिस्ड। ये सब था। फिर जॉर्ज, भाई जॉर्ज की कहानी पता है तुझे? जॉर्ज ने एक बार क्या करा, वो चार्जर पे लगा के पिलो के नीचे रख के सोता था फोन। तो सर आए, सर ने उसको उठाया, वो उठा, सर ने उसका पिलो हटाया, फोन लेके चले गए। तो वो नीचे दिशा दीदी थी उस टाइम पे, ही वेंट डाउनस्टेयर्स, उन्होंने फोन निकाल के वापस ले लिया जॉर्ज ने अपना। फिर सेकंड डे उसने सेम चीज करी, बट इस बार चार्जर के ऊपर लिखा हुआ था फक यू। इस बार चार्जर के ऊपर लिखा था फक यू। तो सर ने उठाया, ऐसे देखा, फिर से देखा, फिर वापस चले गए मुड़ के कि अरे शिट, सुबह सुबह क्या पढ़ लिया मैंने। अरे तो फोन अभी देख, उसने जानबूझ के चार्जर के पास बस फक यू लिखा हुआ था। चार्जर जानबूझ के पिलो के नीचे डाला था, वायर, और फोन पे लिखा है. भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, एक ना मेरे पास ना इतना वाला फोन था, लाइक स्क्रीन वाला, भाई मैं इनके आईपॉड पे जिया हूँ भाई। हाँ, यू हैड माय आईपॉड। पूरे I hope you gave it back. 7th नो 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 भाई, आईपॉड का बहुत फनी स्टोरी है। 8th और 9th आई थिंक, नहीं हाँ नहीं 8th और 9th भाई आईपॉड पे यूज करा इंस्टाग्राम। आईपॉड पे यूज करा इंस्टाग्राम। बट ब्रो मैंने भी करा यार, मैंने भी करा उस टाइम पे, तो बिफोर यू वर भाई यूजिंग आपने इट। उसकी बैटरी शोध दी थी, उसके बाद मैंने यूज करा। अब पता है सीन क्या हुआ उसके बाद? आई थिंक यू डिडंट बाय इट फ्रॉम मी। नहीं रोनित नया आया था उस टाइम हॉस्टल में, रोनित वो इज उसको बेच दिया। भाई वेरी फनी स्टोरी है। रोनित कासमान शाउट आउट। तो रोनित आया था, सब उसको ऑटिस्टिक बोलते थे। हाँ थोड़ा हाँ। तो नया नया आया था, उसका फोन ले लिया जाता था कि नया आया, तो सर वाज टू कि भाई मतलब रूल्स फॉलो करो, तू अभी से स्टार्ट कराऊंगा यूज करना, तो फिर नहीं करेंगे बच्चों। तो ये सब सीन था। तो मेरे पास एक बार यार सैड कि भाई यार सो मेनी चिक्स, भाई डीएम करने होते हैं, स्नैपचैट करना होता है, क्या करूं। ही नोज मेरा आईपॉड कैसा था, वो वायर के बिना नहीं चलता था भाई। यू नीड उसकी टू बैटरी कीप इतनी इट खराब थी। प्लग्ड इन, इफ यू प्लग इट आउट गॉन। और वो भी पता है क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि हम बास्केटबॉल खेलते थे धूप में, और आईपॉड ही था, उससे हम गाने प्ले करते थे, और एकदम धूप आ रहा है और आईपॉड ऐसे पोल के सामने रखा हुआ है, वो माइक्रोवेव हो रहा है बढ़िया। तो उसके बाद मैंने उसको आईपॉड दिया, मैंने कहा भाई देख मैं तो हॉस्टल से जा रहा हूँ, आइदर बाय इट फ्रॉम मी और डोंट यूज। ठीक है, तो कहता ठीक है भाई, कितने का ये वो, ही इज फकिंग लोडेड। तो आई बॉट द आईपॉड फॉर आई थिंक 22 or 24K। आई टोल्ड हिम सी इट्स अ ब्रांड न्यू आईपॉड, आई विल गिव इट टू यू फॉर 23K। ठीक है, एंड दैट मदरफकर बॉट द आईपॉड। भाई क्या इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई बेंच। और भाई उसके बाद मैंने आईपॉड भी क्यों भेजा था, मुझे उस टाइम नए जॉर्डन्स चाहिए थे। अरे यार, तो उसके एक हफ्ते बाद मैंने कहा कि भाई अभी पैसे खर्च नहीं करूंगा, एक हफ्ते तक उसको चलाने दे, अगर उसको पता चल गया कि बैटरी में इशू है तो पीछे पड़ जाएगा। भाई उसने कुछ बोला ही नहीं बैटरी के बारे में, और एक हफ्ते बाद मेरे पास नए जॉर्डन थे भाई तो इट्स अ विन विन। मैं उस वक्त आई थिंक फेक ही पहनता था, भाई फिक्स पहनता था मैं उस वक्त। तो भाई पैसे नहीं थे भाई, पापा से भी क्या बोलूं, पापा 10,000 का जूता चाहिए, और चांटा और दे मेरे को। बेंच फोन इतना सही यूज कर रहा, जूते देखो 10 फिट इन तो करना ही। फिट इन तो भाई देखो लांसर्स में करना भाई पड़ता करना पड़ता है। है, लाइक अंटिल जब तक तुम 9th 10th में हो तब तक कूल है,
नहीं तू तो था ही 9th 10th तक 8th 9th तक हो तब तक कूल है, तुम कुछ भी पहनो, नो वन गिव्स अ शिट, बट 10th 9th 10th 11th 12th उसमें यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे। भाई लड़कियां भाई ढंग से मेकअप करके आती थी भाई 11th 12th में, कोरियन चाहे कोरियन हो, मतलब मोस्टली कोरियंस, इंडियंस भी फिर कर इवेंचुअली उनको भी पर्दा आता है। दैट्स ट्रू। एंड प्लस भाई वो भी नहीं है, वो आते भी ऐसी ऐसी जगहों से थे। आई हैड 2 फ्रेंड्स भाई, उसमें से एक का भाई था, जब मैं स्कूल में गया ही था, आई वाज इन 7th ग्रेड, भाई जी वैगन वाज अ बिग थिंग बैक देन, नॉट जी वैगन, अपना उसकी बात कर रहे हो जो थोड़ा मोटा था, फिर उसने लाइपोसक्शन करा लिया भाई, पोर्शे वाला, नाम भूल गया मैं, गौरव नाम था। नहीं मैं नाम ही तो नहीं लेना चाहता। अच्छा तो नहीं तो नहीं उससे भी पुरानी बात कर रहा हूँ। अच्छा जो तू बात कर रहा है भाई, दैट गाय यूज्ड टू कम इन अ बेंटली टू स्कूल। भाई You showed me like he was related to the owner or something. No, that is the other guy I'm talking about. तो दूसरा जो बंदा है भाई 7th ग्रेड में, मैं, ही वाज इन 11th और 12th बैक देन, भाई मैट ब्लैक लैंड रोवर वोग विद दिस क्रोम ग्लासेस, क्रोम टिंट्स, वो स्कूल के अंदर खड़ी होती थी, वो स्कूल आता था 11 बजे और वो मिलने जाता था ओनर से स्कूल के पहले, फिर वो जाता था प्रिंसिपल के रूम, फिर वो अपनी क्लास में जाता था। तो ऐसे बच्चे आते थे हमारे स्कूल में। तो फिर यू हैव टू, इवन इफ यू दे डोंट माइंड कि हाउएवर यू लुक, यू शुड जस्ट बी अ नाइस पर्सन। हमारे स्कूल का थ्योरी था कि भाई, वहाँ से मैंने बहुत सीखा है कि भाई हाउ टू बी अ नाइस पर्सन। इवन लाइक आई हैव सीन पीपल हु आर डैम रिच, ठीक है, मतलब एकदम बट लोडेड, बट इफ यू लुक एट देम भाई ऐसा लगेगा कि यू कांट टेल देम कि उनके घर में लैम्बो खड़ी है भाई, ऐसे लोग हैं। Money doesn't buy class. भाई मोस्ट ऑफ दैट वहाँ पे मतलब थे, मतलब अमीर लोग भी थे, अमीर इज वन थिंग भाई, रईस लोग भी थे, बट दे डिडंट हैव लाइक, दे weren't गुड टू टॉक टू, सो लाइक उनके फिर लोग मजे भी और लेते थे, ज्यादा लेते थे, चाहे कितना ही पैसा है भाई, मतलब दैट इज वेयर वी। मेरा फर्स्ट फ्रेंड पता है स्कूल में बेंटली वाला ही था। अच्छा, आई डोंट नो हु यू टॉकिंग अबाउट, आई थिंक आई डू। हां, लाइपोसक्शन गाय। अच्छा हाँ, समझ गया ना। वो मेरा फर्स्ट फ्रेंड था स्कूल में भाई, उसने मुझे बहुत ऐसे कॉन्शियस कर दिया था मेरे से हमेशा, लाइक कमिंग फ्रॉम अ पब्लिक स्कूल एंड दैट टू वेयर भाई एकदम वेस्ट दिल्ली का छपरी क्राउड आता है। तो यार आई टेल यू, मानव जो है ना, मानव को ही गिफ्टेड एन आईपैड ऑन हिज बर्थडे, अ ब्रांड न्यू आईपैड। गौरव की बात कर रहा हूँ, लवर बॉय भाई। हाँ भाई आई थिंक ही वांट समथिंग फ्रॉम मानव। जेस्टी लोग थे हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल में जेस्टी थे लोग, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने इतने देखे जब मैं आया था भाई आई थिंक मतलब मेरे हमारे बैच में, अच्छा हाँ थे मेरे बैच में थे, आई डोंट नो योर बैच। दैट गाय फिजिकल एजुकेशन वाला जो वो था, ओ गिलबर्ट, गिलबर्ट, यस गिलबर्ट जूनियर। हाँ भाई पार्था, यू नो पार्था। हाँ पार्था ने एक बार उसको मेरे दोस्त के घर पे बैठ के समझाया कि व्हाई आर यू गे ब्रो, यू शुड बी अ मैन। या व्हाई उसकी कन्वर्सेशन हुई है 2 घंटे। भाई जाट नहीं था भाई, पार्था भाई, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, He's from northeast. भाई he went to him straight up और कहता bro I have a question from you। कहता yeah सही एकदम गे की तरह कहता why are you gay bro, look at your dad। भाई he's all puffed muscle and he's like 50-55 plus। स्कूल के पीटी टीचर भाई, प्रिंसिपल उनकी वाइफ है। Yeah, प्रिंसिपल उनकी फकिंग वाइफ है भाई, उनका बच्चा गे है। and भाई they both are like very like I mean it's not a problem now, like I'm fine with like people how they are and stuff, but like उस वक्त मतलब था थोड़ा कि मतलब उस टाइम it was a new thing for everyone। yes, it was a new thing back then। बट अब तो बहुत ज्यादा ओपन है भाई, मतलब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट मेरे स्कूल में भी है, बस सॉरी स्कूल कह रहा हूँ, मेरे कॉलेज में, आपके कॉलेज में भी, हमारी फैशन I कॉलेज just stay the fuck away भाई, I'm homophobic। people are bisexual just for You're on camera, just saying, it backfires, I'll cut the shit out। But I'm just saying it is what it is। Okay, I'm just not comfortable भाई। मतलब हाँ, अरे मैंने एक मीम देखी थी कि गे और बलिनो दोनों ठीक लगती हैं बट दूसरों के घर में। I mean ठीक है, apt saying। भाई ये रेवेनम के बारे में बात हो रही थी, ये कहा हम एकदम This is DTF, we just why? a little bit of yeah I get it। Yeah, one of our female friends were asking us कि भाई आना है, मैंने बोला भाई देख तू नाम पढ़ एक बार, dude talking facts, तू नहीं आ सकती, grow some balls।
We need some. हाँ युविका इवेंचुअली किसी दिन तो बुला ही लेंगे. Okay, so I think we should wrap it up. नहीं भाई अभी चलते रहते भाई, क्या होगा भाई. बहुत हॉस्टल की बात कर ली तुमने. भाई लेट बी ब्रो. क्या टाइम हो रहा है? अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ वो भाई. एग्जैक्टली भाई आराम से. Then let's talk about something else.